going in the right direction. So now let me help some of the students who did not put the efforts to understand this thing, or maybe they put efforts to understand the thing but they are too lazy to type. Okay, but typing नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिखेंगे. Okay, so this question says that the growth of the cities as IT hubs. So the first key is cities as IT hubs has opened up new avenues of employment. Okay, new avenues of employment, but has also created new problems. New. Okay, the question says that ट्रेडिशनल जो चीजें होती थी, ठीक है, ट्रेडिशनल कुछ सुविधाएं आपको शहर में मिलती हैं. ओके, ट्रेडिशनल चीजों में जो एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू एवेन्यूज भी क्रिएट हुए. ठीक है, नए. द फोकस इज ऑन cities as IT hub and new avenues of employment. And new problems. Okay, traditional ones तो है ही. The traditional problems, the traditional employment is already there. Okay, but what new forms has emerged? This is the demand of the question. Okay, so clear cut दो चीजों के बारे में आपको बात करनी है. You have to give few examples here. You have to give few examples here. Okay, because it says that substantiate this statement with examples. तो आपको क्या है, फोकस आपका न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू प्रॉब्लम्स पे है. एग्जिस्टिंग वन, सम ऑफ देम वर देयर. ठीक है, नए का मतलब एकदम ही नया नहीं है. ऑफ कोर्स सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वर देयर बट दे aggravated with time. Some employment were there but the extent increased. New का मतलब absolute नया आ गया ऐसा नहीं जरूरी है. Okay, so some of the things that you have written is good. Now we have understood completely the demand of the question. It says something about cities as IT hub. Now you have to write an introduction. Okay, so अब आपको एड्रेस करना है. Okay, so new cities are becoming IT hub. When you have to talk about this thing and still you feel like your introduction will include Bangalore, Pune, so I don't think that is a very good choice. Okay, when it is talking about some new centers emerging. Okay, some of the cities emerging as IT hubs, initially their purpose could have been very different. Okay, वो कुछ अलग रहा होगा. So before introduction, one thing that you need to know, if you have to write this question and you are reading this thing, when you have to give the weightage, so understand that even if you'll talk about, let's say, 20 new types of jobs that can be associated, so this is simply putting forward that a new thing is being given. So in any question, why would we write 20 things like that? Okay, because it will only indicate that this service is there, this service is there, this employment is there, this employment is there. So type hai. So the weightage that you have to give to this part is not going to be 50%. इसको हम 50% दे के क्या करने वाले हैं? Some of the factual thing that doesn't
make your answer interesting or does not throw light on something which is very relevant. Okay, तो इसको आप 25 to 30% से ऊपर स्पेस नहीं देंगे. Okay, and now this is the challenge. This is the challenge that everybody is facing, and as an administrator, as a bureaucrat, you will be supposed to make a policy to check this thing. Okay, आपके एग्जाम का नेचर यही है ना, आपको ब्यूरोक्रेट बनाना चाहती है, डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स. तो उन लोगों को किस पे काम करना है? आपको सॉल्यूशन पे काम करना है. दिस इज अ प्रॉब्लम that you have to understand better. If you understand this problem better, then and then only you can come up with a solution. So its weightage has to be from 70 to 75%. Okay, and then we move forward with this introduction part. So what we can talk about introduction? Some of the newer cities which are adapting to this thing, and the purpose was little different from what they have been doing traditionally, and then suddenly started emerging as IT hubs. So we'll talk about them. There were traditional cities which were catering to the IT services, but today we see that more and more IT hubs are emerging, and here also we'll add examples. Okay, we'll add examples here. The examples can be what? Chandigarh, which is shifting more towards IT. Bhubaneswar, which was administrative city, now it is focusing on being an IT hub. Lot of companies have invested there. Or some of the traditional cities which were like not involved in any of these kind of business, like Kozhikode maybe, which is focusing. And this Noida was developed with the idea of this thing, and it is attracting. ठीक है, so we can talk about Noida. Gurugram also has certain features, though it has it is taking care of lot of other things. So इनमें से कोई 2-3 नाम लिखेंगे. ठीक है, we'll give a statement where we'll talk about that traditional cities were already working in the IT field were there, but with time we are seeing emergence of new cities which are focusing on IT and related activities like this. ठीक है, 2-3 नाम आपने दे दिया. This is your introduction. We'll keep it short. And now we'll directly move to the second part of the question, जहां हमें इसकी बात करनी है, न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सचिन, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज अ रेलवे प्रोजेक्ट. रेलवे प्रोजेक्ट को आप क्यों लेके आएंगे इसमें? ऐसा इनडायरेक्ट दूर से क्या है कि उसके कुछ चीजें क्या है कि ऑटोमेटेड होंगी, इस पे नहीं बात करेंगे. सिटीज आईटी, रेलवे इज लाइक, रेलवे इज नॉट, आप नहीं लिखेंगे सिल्वर लाइन के बारे में. ठीक है, ऐसी चीजें नहीं इंक्लूड करेंगे. And now we have to move to the second part of the question where we'll be talking about some of the things that we see. Okay, so emergence of new avenues in these new cities. Some of these cities were focusing on maybe manufacturing initially. Some of these cities were focusing on hospitality or something else. Okay, so when we talk about the IT, ठीक है, when we talk about the IT and why some more cities are taking interest, so we'll write a connecting statement that a lot of new avenues of employment are emerging in these cities, which are, some of these are as follows. ठीक है, so maybe अब IT सेक्टर को अगर हम डिवाइड करते हैं, okay, so directly क्या है कि the first thing that comes to our mind is some software, right? Some software making games, and this is new to the city. Okay, making some apps, applications are nowadays in vogue. Okay, software, games, applications development based on
some newer languages or using some newer languages. ठीक है, अब ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में सी, सी प्लस प्लस शायद आप लोगों ने भी सुना होगा. नाउ वी आर यूजिंग लिनक्स. ठीक है, सम मोर प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें से एक दो लिख देंगे जो भी आपने कभी सुना हो. सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग, दैट वाज नॉट हैपनिंग ऑन दीज सिटीज, एंड दे आर इन्वॉल्विंग skilled people who are specialized in doing this thing, skill based employment. ठीक है, now you can talk about BPOs. ठीक है, ये बहुत पुराने नहीं है. BPO इज लाइक व्हाट, सपोर्ट दे रहे हैं. पहले क्या है, लोग प्रोडक्ट बना के दे देते थे, सपोर्ट क्या है एक आदमी देखता था. बट BPO एंड KPO इंडस्ट्री, नॉलेज प्रोसेसिंग, ठीक है, दिस BPO डायरेक्टली रिलेटेड टू this sector. You can talk about knowledge processing, KPOs. Okay, ये direct employment जो IT ही सीधे दे रही है. Okay, so we are maybe will focus on some of the sectors which are direct in nature, based on skill set. ठीक है, some specialized skill set which was not part of that hub initially. Okay, अब इनडायरेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं. ओके, यू कैन ग्रुप इट एज डायरेक्ट बेस्ड ऑन स्किल सेट, IT रिलेटेड स्किल सेट, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इनडायरेक्ट वंस. ओके, और इसमें क्या है कि आप इसका एग्जाम्पल आपको देना है. इफ यू वांट टू गिव सम एग्जाम्पल, ऐड, अगर कोई नाम पता है तो वो दे देंगे, या सेक्टर्स का बता देंगे. ठीक है, BPO आज सारे सेक्टर्स में है. ठीक है, मेंटेनेंस, बैंकिंग, एजुकेशन. ओके, एंड दीज आर मोर और लेस दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू सम ऑफ दीज. तो एक दो एग्जाम्पल यहाँ, एक दो एग्जाम्पल यहाँ, आपने एग्जाम्पल भी दे दिया. बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं जाएंगे. वी हैव टू सेव आवर वर्ड्स, विल नॉट बी वेस्टिंग एनीथिंग ऑन एलाबरेट डिस्कशंस. ओके, अब this food chain business or restaurant culture, when the whole world was employed in some blue collar job, okay, when it was like most of the people were doing some bodily jobs, तो ये कल्चर ज़्यादा नहीं था. ठीक है, होम डिलीवरी सर्विसेज. ओके, सो you can talk about home delivery services which are very new in nature. है बहुत कुछ, लेकिन न्यू की बात हो रही है ना. होम डिलीवरी सर्विसेज आपके ये नई चीज़ें हैं. IT hubs have more, they have more money. Even if something is like 50 रुपीज़ का आपको दुकान पे मिलेगा और 53 का ऑनलाइन है, तब भी हम मंगा लेंगे. वो तो कंपटीशन चल रहा है, इसलिए लोग सस्ता कर देते हैं. सो यू कैन टॉक अबाउट मे बी सम होम डिलीवरी सर्विसेज. ओके, and IT hub people more number in the city and they have to move in the morning and most of the people are like single, college से निकले और जॉब करने लगे, तो सब तो वाइफ और मम्मी तो नहीं जा रहे हैं. ओके, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जा रहा है जो आपको खाना बना के दे सके. सो मे बी सम काइंड ऑफ टिफिन सर्विसेज बिकम मोर पॉपुलर. ओके, स्पेशलाइज्ड वंस बेस्ड ऑन द नीड्स, डिमांड्स. तो इनको क्या है कि पहुंचाने वाले, बनाने वाले आपके बहुत सारे हैं. बेबी सीटर्स का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था. ठीक है, अब यंग पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग इन IT फील्ड, सो दे कैनॉट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. ओके, किंडरगार्टन स्कूल्स वेयर पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज विच रन फ्रॉम 2 घंटे वैसे यूजुअली स्कूल में रहता है बच्चा. ठीक है, लेकिन ऐसे भी हैं जो 8 घंटे 9 घंटे दे टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, दे एंगेज इन सम प्ले, मे बी सम एजुकेशन, सम लर्निंग. So these kind of avenues which are very new, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. ठीक है, कोई स्कूल चैन का नाम अपने आपने ही यहाँ देखा हो,
उसका मेंशन कर देंगे। फूड डिलीवरी, होम डिलीवरी में बहुत सारे एग्जाम्पल है। अमेजन एक प्लेयर है जिसने बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया है। ओके, वाईफाई सर्विसेज at home, Wi-Fi at home. This was not very common. So installation, private companies, इसमें क्या है कि रिलायंस, एयरटेल, और आपके यहाँ जो लोकल लेवल पे चलता हो, ओके, देयर लॉट ऑफ देम। हाँ, स्किल, न्यू स्किल डेवलपमेंट, टीचिंग जॉब्स, बिहेवियर कैसे रखना है वैसे लोग, ओके, एटिकेट्स के ऊपर नए, तो नया एवेन्यूज के बात करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी वाशरमैन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, दीज आर लाइक किसी को भी चाहिए। अभी आईटी वाला बनेगा तो उसको चाहिए ऐसा नहीं है। बट आईटी ने क्या किया, इट रेवोल्यूशनाइज्ड, एवरीबडी इज सिटिंग इन एन एसी रूम, सो इट मेड some of the jobs more comfortable for both the genders, so more people get employed. Now even parents are like who were very touchy about their girls going outside and working, they know that मेरी बच्ची क्या है, एसी में रहेगी, सेफ है, सिक्योरिटी वाले रहते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग है, सभी लोग रहते हैं, दे अलाउ देम। अभी मैकेनिकल वाला कोई फैक्ट्री है जहाँ बिस्किट बनाते हैं, वहाँ नहीं भेजते थे पहले लोग लड़कियों को, ओके, वहाँ क्या है कि आप, मारुति कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड सम गर्ल हु हैज डन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भेजते ही नहीं थे, वो बेचारी शादी करके ऐसे ही हाउस मेकर बन जाती थी। ओके, सो दीज न्यू एवेन्यूज यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और ये बहुत कम में हो जाएगा, ठीक है। सो बेबी सिटर्स एंड दीज आर ऑल एग्जाम्पल इन इटसेल्फ। किसी कंपनी का नाम डालेंगे तो एग्जाम्पल नहीं है, यही तो एग्जाम्पल है, नया जॉब, न्यू टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट दिस हैज created. Okay, so you'll talk about some new things. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ट्रेडिशनल वाला लिखेंगे फिर आके बोलेंगे यूपीएससी गलत नंबर दे रही है, यूपीएससी इज नॉट डूइंग जस्टिस विद अस, so people complain only because they miss the question. Okay, so you have given something and you have freedom of writing 250 words, so let's say writing the introduction, doing this, we have reached around maybe some area where 75 words have been utilized, still we have lot of scope of giving the half of that, उससे भी कम में हो सकता है ये। okay, so you have talked about all these things which are new, ठीक है, क्वेश्चन में न्यू वर्ड पे emphasis है, दोनों में न्यू दिया है, okay, and also has created new problems. So now you'll talk about this thing, यहां तक लिखने के बाद में will write a connecting statement that कि all such good things are happening but have brought some negative repercussions, ठीक है, प्रॉब्लम की बात कर रहा है। so it has brought some negative repercussions to the city area, these IT hubs. okay, specifically इसको उसी शहर से मतलब है जो IT hub में कन्वर्ट हो रहा है। okay, अभी कैब सर्विसेज की भी आप बात कर सकते हैं, दिस इज वेरी न्यू इन इंडिया ऑन ए मैसिव स्केल ऑनलाइन, तो उसमें ऐसे सर्विसेज की बात करेंगे, ओला उबर टाइप, ओके, ओला उबर सर्विसेज टाइप, यहाँ ड्राइवर्स को नौकरी मिल रही है बट ऑन ए लार्जर स्केल, ठीक है, तो वैसा आप बात कर सकते हैं। नॉट, ये सारी चीजें पॉजिटिव, इसमें नई चीजें। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ओके, वी हैव सम प्रॉब्लम्स, ओके, सो राइटिंग ए स्टेटमेंट दैट ऑल दिस थिंग हैज ब्रॉट गुड थिंग्स टू द, हाँ धीरज यू कैन ऐड ऑल ऑफ दैट, रैपिडो और क्या जो भी नाम है एक दो लिख देंगे। सो व्हेन वी सी दैट दिस थिंग हैज हैपेंड, सो इट इज हैपनिंग एट अ कॉस्ट, इट इज हैपनिंग एट अ कॉस्ट, उसके निगेटिव साइड इफेक्ट्स होंगे। ओके, पुराने शहरों के भी निगेटिव साइड इफेक्ट थे, बट ये नया प्रॉब्लम क्या जनरेट कर रहा है वो देखते हैं। ओके, so you'll write a connecting statement and let's say now we'll focus on the problems. Okay, so instead of talking about some traditional problems, why not we talk about the problems which are real, which has been created because of this. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, change in the policy priority of the government and municipality. Okay, change in the
policy and priority areas. Of government or municipality. ठीक है, सबसे बड़ा बदलाव तो सीधे सीधे पूरे सिस्टम पे ही हो गया. हाउ? हियर वी हैव टू टॉक अबाउट द थिंग लाइक there is some sector, the IT sector, okay, which is generating a lot of money, which is generating a lot of employment. So the sole focus of the government is to make sure that this thing grows. अब इस चीज को तो आगे बढ़ाना ही है क्योंकि ये बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. ओके, तो जब बहुत सारा दे रहा है तो क्या होगा? neglect of other sectors and areas, neglect of other sectors and areas. अब गवर्नमेंट जानती है कि दिस IT is giving jobs, money as tax. ठीक है, गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है? द गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विच इट नीड्स मनी. गवर्नमेंट वांट्स टू प्रूव दैट वी आर गुड, वी आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल. ओके, और वो दोनों मुद्दा कौन पूरा कर रहा है? दिस सिटी इज डूइंग. सो नाउ policies neglect other sectors. अब इसी में जो मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, हाँ हेमंत लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. ओके, यू कैन डेफिनेटली. सो अब पहला एग्जाम्पल क्या है कि नेग्लेक्ट अदर सेक्टर्स. तो सबसे ज्यादा IT हब्स में नुकसान किसको हुआ? जब भी IT हब डेवलप हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ पुराने मैन्युफैक्चरर्स को. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हब्स प्रोडक्ट्स दैट क्रैश्ड. ओके, तो यहां आप क्या है कि यू आर पुटिंग दैट इन एरियाज. Areas is very simple. Look at any IT sector. That city is like so developed. And go just 10 kilometers away. Pune ho wo, Bangalore ho, Hyderabad ho. For that matter, Noida ho, Gurgaon ho, Bhubaneswar ho, Chandigarh ho. You'll see a stark difference. These cities are towering, they are growing IT hubs, and surrounding area doesn't have many things. Why? Because the resources are coming here, all the talent, all the good things is moving to this area. Now this is backward. ओके, सो पॉलिसी ही गड़बड़ हो गई. गवर्नमेंट को भी ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ वाले जब आके यहाँ नौकरी पा जा रहा है तो यहाँ वाले कंप्लेंट नहीं करेंगे, ये मान ले रही है वो. ओके, सो दिस डेवलपमेंटल मॉडल दैट इंडिया वांटेड टू फोकस सिंस इंडिपेंडेंस, दैट ऑल द एरियाज मस्ट ग्रो, ये तो फेल हो गया. वी डोंट अचीव दिस थिंग, राइट? सो यू कैन टॉक अबाउट द सिटीज लाइक, अगर आंध्रा का एग्जाम्पल लेते हैं तो द ओनली थिंग विच इमर्ज्ड, अब वो तेलंगाना हो गया है, उसी का ले लीजिए, तेलंगाना मान लीजिए. सिर्फ एक शहर है जो सब कुछ है, बाकी सराउंडिंग कैसी है? दे आर सफरिंग. इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से भुवनेश्वर, वो अकेला बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, साफ सुथरी जगह है, सब कुछ है. बट आपके बगल में ही उड़ीसा में कैसी जगह है वेयर 90% ऑफ पॉपुलेशन इज लाइक BPL, KBK, बोलंगीर,
Koraput, Keonjhar districts, one of the poorest districts of India. So finally, people are happy that our capital, the administrative capital is like very good. People, वही उड़ीसा का मिले आप कहेंगे कि बहुत अच्छा है आपका शहर. He is happy. But reality क्या है? They are suffering. The most of the people are suffering because all the avenues are available in a single city. So कोई एक example लिख दीजिए. You are done with this thing. And this is a real problem, right? This is a real problem, new problem कि policy ही चेंज कर दी. दूसरे के बारे में सोचने की क्षमता अगर आप गवर्नमेंट और शहर का ही बदल दें. हाँ, लेकिन ये चेंज कैसा है, न्यू प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये पहले होता क्या था, द प्रॉब्लम वाज साइड फ्रॉम मे बी सम ब्यूरोक्रेट्स, सम पॉलिटिशियंस, बट नाउ द इवन ए न्यू गवर्नमेंट विच इज बीइंग फॉर्म्ड इज फोकसिंग ऑन दैट थिंग. एक ही शहर पूरा फोकस हो गया है. ओके, नाउ द अदर प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम दैट हैज इमर्ज्ड, द शॉर्टेज ऑफ manpower in municipalities. Now the city was designed in a way and the municipal was made to ensure that they are recruiting proper number of people who can take care of the things. Okay, लेकिन यहाँ हुआ क्या? Okay, यहाँ हो क्या रहा है? This is a area where lot of new people are entering. और ये population बढ़ कैसी रही है? I got employment in Bangalore, so from my family I went there. Somebody else like that, let's say, सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं. So this individual is high earning potential. तो यहाँ क्या है कि शहर में चले गए. So the government is accounting for this direct attraction. They know that when we have developed this IT hub, then there is going to be some individuals who are coming. इतनी इतनी कंपनियां हैं, एक एक करके 4000 लोग आ जाएंगे. 4000 people will reach here. Okay, but initially they did not count that this individual is like what? He is very young or she is very young. She won't be able to manage everything by himself or herself. So they'll require one cook, they'll require somebody to clean, they'll produce, they'll require maybe some other facilities. That is individual centric. So a lot of people are also entering to provide these. ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे इसको देखने. तो ये अकेला नहीं आ रहा है, ऐसे 5 मान लेते हैं कि 5 अकेले लोग आए. सो ये 5 अपने साथ 5 और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं XYZ सर्विस के लिए. एंड दिस म्युनिसिपैलिटीज वर नॉट रेडी फॉर दिस. सडनली उनको पता चलता है कि हमारे पास शहर में है ज्यादा लोग. ओके, और हम इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं. ओके, वी कैनॉट मैनेज दिस थिंग. एंड सो आपका क्या है कि इलीगल पार्किंग हो गई, गाड़ी उठा के ले आना है. ठीक है, 100 गाड़ियां पार्क हुई हैं, म्युनिसिपैलिटी के पास 2 ही गाड़ी है जो उठा के ले आती है. तो दिन भर भी उठा रही है, तब तक क्या है कि 100 जगह जाम लग जा रहा है. ओके, सच प्रॉब्लम. उसके बाद और क्या होगा? गार्बेज. वो इसके लिए रेडी है कि ये 5 आएंगे तो विल सेंड ए व्हीकल विच विल टेक केयर ऑफ द गार्बेज दैट दे आर प्रोड्यूसिंग. बट दे डिड नॉट थिंक ऑफ दिस कि इन 5-6 लोगों का गार्बेज जो जनरेट होगा उसका क्या करेंगे. सो फाइनली इनसफिशिएंट मैन पावर. तो इसमें से कोई 2 चीजें लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. दीज आर इन इटसेल्फ एग्जाम्पल. ओके, एंड इट इज हैपनिंग विथ एवरी सिटी. सो मैन पावर का चैलेंज स्टार्ट हो गया. नाउ just give me a moment. Okay, just give me a moment. I have to ask someone to change the battery of the camera.
Now, this is a new challenge for a city which was unexpected, not planned. Manufacturing, we know that if blue collar job वाला कोई आ रहा है, okay, तो वो क्या करेगा? Blue collar jobs. We'll talk about some real problems, Manish, that is existent. हमने बात की क्या? जो real नई problems है उस पे बात करेंगे, सिर्फ उस पे नहीं जो पहले भी होता रहा है, ठीक है? वो आपके एग्जाम्पल्स ठीक है, लेकिन प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, जो मेजर है, जो डैमेज कर रहा है शहरों को भी, देश को भी, जिससे नुकसान है. ओके, नाउ द थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम, इनफैक्ट इसको आप सबसे इससे पहले भी लिख सकते हैं. द प्रॉब्लम इज द वीकनिंग डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी इशू. Now a new problem has emerged where city holds a lot of people who are like today working in Bangalore, okay? Who is today working in Bangalore, and in 5 months he gets an opportunity, he'll move to Chandigarh. Again he gets an opportunity, he'll move back to Hyderabad. हर साल ये घूम सकते हैं because no plans of marriage, joined at the age of 21, he can do this thing up to age of 28, maybe 30. अब मैरिज की एज भी बहुत आगे बढ़ गई है, 30, 32, 35 is very normal. Okay, so this individual is moving and he doesn't have to do anything with the vote of that area जहां वो काम कर रहा है. इसको कोई मतलब नहीं है. पहले क्या होता था, आप फैक्ट्री में काम करते हैं 20 साल तक, मारुति में कर रहे हैं 20 साल करते रह गए. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जहां आप कर रहे हैं उसी शहर में घूम सकते हैं, उसको जगह छोड़ के जाते नहीं थे लोग, तो वोटर आईडी बनवा लेते थे, सब कुछ. नाउ यू आस्क सम, बट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन मे बी पुणे, बैंगलोर, आईटी हब्स में, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा, they don't own a voter ID because they are not sure कि whether they live in this area for 5 years. So they are mobile voters. घर का होगा जहां ये और कम जाते हैं, इलेक्शन के दिन पहुंचेंगे ही नहीं. And this is a large chunk. Young people who have potential of understanding what is wrong, what is right, they are more educated and they fail to vote. Okay? And most of the cities are, that is IT hub. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? इन्हीं की है. तो ये सिर्फ वोटर की इशू नहीं है. अब रिप्रेजेंटेटिव की अगर आप बात करें, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, ठीक है? एक्सप्लेनेशन भी प्रॉब्लम का प्लस एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम दैट सम ऑफ द सिटीज आर फेसिंग. आप पुणे की बात कीजिए, चंडीगढ़ की बात कीजिए, नोएडा की बात कीजिए. व्हाट इज द वोटिंग परसेंटेज? 48, 43, 42. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. मेजोरिटी नहीं वोट कर रही है. ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव क्या है? he doesn't have an accountability. He knows that these people are not going to ask any questions if some of the facilities are not reaching or some corruption event is happening. Okay, so he is also like very reluctant to do something better for the city. अब म्यूनसिपैलिटी प्रेशर में है, हमारा नेता क्या है कि इंटरेस्टेड नहीं है, जनता जो है वो वोट नहीं कर रही है. तो आप कहीं भी जाइए, शहरों की दिक्कतें बढ़ रही हैं इस चीज की वजह से. देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द representative and the people. Okay, yeah, Dheeraj. So this is new challenges which is hitting the democracy and the representative and the who are being represented. No connect. पहले नेता और जनता जुड़े हुए होते थे, डिसकनेक्ट है IT hubs में. They don't even care कि who is being selected. Okay, they are busy with some
थिंग दैट दे आर डूइंग, दे आर ऑन फेसबुक, वो है पुणे में बात कर रहा है पटना की, वो है बैंगलोर में और चल रहा है कि दिल्ली के इलेक्शन में क्या हुआ. सो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर सराउंडिंग, द लोकेलिटी दैट दे आर लिविंग. इवन नहीं है यार, कोई बात नहीं है, मुझे जिंदगी भर थोड़ी रहना है, कहीं और चले जाएंगे. दिस इज द टेंडेंसी. ओके, अगेन if we talk about the new challenges, buying homes has become difficult in the cities since these IT hubs started being created. आज की डेट में रियल एस्टेट की सबसे ज़्यादा कीमत कहाँ है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग हब्स पे. मारुति का कहीं फैक्ट्री लगा हुआ है इसलिए है. दिस कॉस्ट escalation is mostly based on the cities which are service driven, and all the services are like what today dependent on this IT hubs. So these IT hubs are pushing the prices of the real estate. Okay, so this is a big challenge that has emerged. Previously क्या है, हमसे पहले जो लोग पहुंचे शहरों में, if somebody reached Delhi, दिल्ली में ही घर खरीद लिया है. आज की डेट में आप करके दिखाइए. आप क्या है कि छोटे से घर में भी रहेंगे तो करोड़ों रुपए का खर्चा है, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैं अच्छी जगह नहीं रह रहा हूँ, अच्छे से नहीं रह पा रहा हूँ, नेबरहुड साफ नहीं है, करोड़ों रुपए लगा दिए, तो आप बाहर भागने लगेंगे. ओके, एंड दिस इज ए बिग प्रॉब्लम, द सोअरिंग प्राइजेस ऑफ द रियल एस्टेट. Okay, and here you can talk about Delhi NCR region. Almost 58 lakh homes are unsold during COVID. अब कुछ स्ट्राइक कर जाए ऐसा, ठीक है, रिवर्सेस इन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द कॉज. अभी कोविड ने कर दिया, कभी और कुछ कर देगा. तो फाइनली क्या है, दे कैन नॉट रिड्यूस द प्राइस, नोबडी इज परचेजिंग. आवर एजेंडा इज टू अचीव व्हाट? हाउसिंग फॉर ऑल. Houses are there, nobody can buy. 58 lakh houses empty only in NCR. 58 lakh houses, right? So you can put some of the things that appear in newspaper. Okay, and slum development becoming a phenomena. Faster slum development. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गई. ठीक है, दिस स्लम डेवलपमेंट वाज ऑलवेज अ फीचर ऑफ द सिटी, बट दिस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इट इज न्यू. सो मेनी पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, मोर देन एवरेज. ठीक है, हस्बैंड भी वर्किंग, वाइफ भी वर्किंग, बोथ ऑफ देम मेकिंग अराउंड 3 लाख रुपीज पर मंथ. दे हैव नो आइडिया कि क्या करना है. घर भी ले लिया है, कार भी है. Now they invest that money on new things, new type of services. Okay, उनको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, ड्राइव करने का मन नहीं है तो ड्राइवर रख लिया. So it is attracting so many people to these IT hubs that today the biggest slums are developing in these areas. It is just matter of time when Mumbai, Delhi are removed from the list of having lot of slums. ये शहर सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. ओके, सो दीज आर, एंड इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग व्हाट? स्लम डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन एक और डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है इसी के साथ. The new form of development, that is suburban development, the area which is based in the rural, nearby rural areas having all facilities. ठीक है, इसी स्लम में से वहां भी जाते हैं. अब स्लम क्या है, बीच में है कि सब अर्बन एरिया में जाके दो, मेन सिटी में जाके दो सर्विस वाले. ओके, सो ग्रोथ ऑफ सब अर्बन एरियाज एंड डिस्प्लेसमेंट इशूज. growth of
suburban areas and displacement issues. Displacing people, not forcefully for some developmental project, but the city itself has become so costly कि बेचारा farmer which is having a field, he cannot buy anything from this city, so there is no purpose of staying very near to the city. शहर में चीजें इतनी महंगी हैं कि बगल का गांव वाला आके भी खरीद ही नहीं सकता है कुछ. So what he does, he sells his land. To whom? Some of the new rich people who are ready to stay there. वहाँ बड़ा सा घर बनाएंगे. I have lot of money, instead of purchasing a home, investing 3 crore rupees in maybe a center of the city, someone chooses to build a big home 10 kilometers away because he have 3-4 cars. मैं भी जा सकता हूँ, बच्चे भी जा सकते हैं, बीवी भी जा रही है, पूरी फैमिली के पास है. ठीक है, they can afford this thing, so they start living in the suburban area. Okay, so this farmer is being displaced and you can give plenty of examples. ठीक है, किसी भी एरिया का आप लिख दीजिए, ये हो रहा है. ठीक है, आप हैदराबाद चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए. ओके, so these are some of the big challenges and new challenges. Now you can talk about everything that you know. इतना लिखने में बहुत सारा चला जाएगा. Now what you can do, you have given some of the things. Now we don't have much space, so other issues or problems जो मन में आता है, क्लाइमेट चेंज, हीट आइलैंड, ये सब हम पढ़ ही रहे थे ना. हीट आइलैंड इज नॉट ओनली ओइंग टू आईटी हब्स, बट इट इज एडिंग टू इट. शहर ही तो बढ़ रहा है ना उसकी वजह से. तो सिंगुलर जो नहीं है वो सारी चीजें लिख देंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन लिखेंगे सिर्फ, उसमें साउंड, एयर, वाटर सब डाल देंगे. ये बढ़ेगा ही ना, पॉपुलेशन कहीं भी बढ़ रही है. तो दीज आर जनरल थिंग्स, दीज आर नॉट न्यू बट हैपनिंग फास्टर because of the IT hubs. Okay, you can talk about toxic water. ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, दिल्ली में यमुना में हुआ था. ठीक है, यमुना में फोम, टॉक्सिक ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर. सो यमुना का एग्जाम्पल दे सकते हैं. दिस इज इंक्रीजिंग. वाई? बिकॉज सब नज़दीक ही हैं जो गंदगी बढ़ाने वाले हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं. गुड़गांव एक तरफ है, दूसरी तरफ गाजियाबाद, फिर नोएडा, ये सारे क्या कर रहे हैं. सो अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, मोर एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो मोर एक्सीडेंट्स, मोर पॉपुलेशन, ट्रैफिक इशूज. बट ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है. लाइक somebody was talking about this trafficking, child trafficking because of the by the babysitters only. तो वो सब लिख दीजिए इसमें. you have child trafficking increasing और child trafficking, begging. छोटे बच्चों को क्या है कि ये बेबी सीटर्स की वजह से हो रहा है, बहुत सारे केसेस आए हैं सामने. ओके, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. These all service providers are like what? Abhi they are coming from rural area where they see that they have no idea ki man and woman can wear something like that. Okay, they have no idea of freedom and culture. They know what they have seen for thousands of years. गांव पे ही था, अभी अचानक पैसे के चक्कर में आया. So all kind of crimes, because not only he wants money, because it goes against his value system. कि यार ये लड़का कैसा है, रोड पे पी के घूम रहा है रात को 12 बजे, तो 2 थप्पड़ मारे, उसका पैसा भी छीन लिया. सो सच काइंड ऑफ इशूज जब हम क्राइम को देखते हैं तो क्राइम इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मॉनेटरी इशूज, क्राइम इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर. वी डोंट एक्सेप्ट कि ऐसा चीज कर सकता है, ये गलत कर रहा है वो मान लेता है. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स. और आपको प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. रोड रेज इंसिडेंट्स, ट्रैफिक की वजह से रोड रेज, लोग झगड़ रहे हैं रास्ते पे. ओके, सो यू कैन टॉक अबाउट ये all such things, and then you'll
पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ तेज हो रहा है. नाउ यू नो, आपने बहुत कुछ किया है. इतना स्कोप 250 वर्ड्स में बहुत है. कुछ एग्जांपल्स दिए, 6 पॉइंट हमने लिखे हैं. तो यहाँ तक आते आते लगभग हमारा ख़त्म ही हो जाना है. ठीक है, तो इसमें भी इतने सारे जो मैंने लिखे हैं, मे बी you'll not find scope for this as well. But if somebody is like managing everything in the right time, so you can do this thing. And then we'll conclude कि more the municipalities and the government has to be aware about such policy, such problems, and some more that are still not well understood. Okay, that is still not well understood, and hence it is time that we take care of all the possibilities and then focus on developing IT cities, which are very necessary for employment generation and development of the country. Conclusion हो गया. Okay. हाँ सचिन, यमुना रिवर सिर्फ एक कारण नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें ऐड कर रही हैं. ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आईटी हब अकेले ड्राइव नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऐड कर रहा है. ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो जा रही हैं. ठीक है, हीट आइलैंड आप लिखेंगे. अभी हीट आइलैंड, लेट्स से यू आर राइटिंग एंड क्लाइमेट चेंज, सो हीट आइलैंड इज ट्रेडिशनल इशू, बट सारे के सारे आईटी हब आर हीट आइलैंड्स बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर वेरी सिमिलर टू व्हाट अदर सिटीज हैव. तो आप उसकी बात कर सकते हैं. तो क्वेश्चन आपने ढंग से समझा या नहीं समझा? ऑल ऑफ यू केम अप विद सम ऑफ द पॉइंट्स की कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर पाने के लिए आपको राइट चीजें लिखनी होंगी ना. और इसमें से क्या ऐसा था जो आपको नहीं पता था? यू न्यू एवरीथिंग. देयर इज नथिंग दैट आई हैव रिटन दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ. द ओनली प्रॉब्लम इज that we do not give ourselves opportunity to think in this manner, and this you have to do. You want to write an answer in 5 minutes, अच्छा हो खराब हो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में लिख देंगे, तो कभी सीख ही नहीं सकते हैं. Initially what we have